हरे कृष्णा। हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री नेक्टर ऑफ डिवोशन चैप्टर 10 और अबाउट मेडिटेशन। मेडिटेशन के ऊपर चर्चा कर रहे थे। इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। So in some Puranas, the evidence is given that if someone is simply meditating on devotional activities, he has achieved the desired result and has seen face to face the Supreme Personality of God. तो कुछ पुराणों में यहाँ तक भी प्रमाण मिलता है कि अगर कोई अ, केवल भगवान के सेवा के कार्यों में बस मेडिटेट करता रहता है, ध्यान करता रहता है, सो उसको डिजायर्ड वास्तविक रिजल्ट मिल गया है और वो भगवान का फेस टू फेस दर्शन प्राप्त करने के बराबर है। So in this connection, there is a story in the Brahm Vaivarta Puran that in the city of Pratisthanpur in South India, there was once a Brahmin who was not very well to do, but who was nevertheless satisfied in himself, thinking that it was because of his past misdeeds and by the desire of Krishna that he did not get sufficient money and opulence. So he was not at all sorry for his poor material position, and he used to live very peacefully. He was very open-hearted, and sometimes he went to hear some lectures delivered by great realized souls. At one such meeting, while he was very faithfully hearing about Vaishnava activities, he was informed that these activities can be performed even by meditation. In other words, if a person is unable to actually perform Vaishnava activities physically, he can meditate upon the Vaishnava activities and thereby acquire all the same results. Because the Brahmana was not very well to do financially, he decided that he would simply meditate on grand royal devotional activities and he began this business thus. तो ये मेडिटेशन ध्यान के बारे में वर्णन किया गया है। एक प्रतिष्ठानपुर का ब्राह्मण की कथा आती है साउथ इंडिया में। तो वो ब्राह्मण जो है गरीब था। सो जनरली जो ब्राह्मण होते हैं गरीब ही होते हैं। तो ब्राह्मण लेकिन बहुत संतुष्ट था, गरीब था बट संतुष्ट था कि ठीक है, मेरे पूर्व कर्मों के कारण मेरे भाग्य में इतना ही संपत्ति, इतना ही लिखा है। तो कभी जो है उसको बुरा नहीं लगता था, दुखी नहीं रहता था और जितना भी होता था अपनी तरफ से भगवान का सेवा में लगता। से एक बार ऐसे और लेकिन उसका बहुत श्रद्धा था आ, जा करके भगवान की कृष्ण की कथा सुनने। तो कृष्ण कथा सुनता था तो एक बार ऐसे ही सुना उसने कथा कि अगर कोई सक्षम नहीं है भगवान की सेवा फिजिकली करने के लिए, तो वो भगवान की सेवा जो है मानसिक रूप से कर सकता है, ध्यान में कर सकता है, उसको उतना ही फल मिलेगा। जब इस ब्राह्मण को ये बात पता चली तो बहुत खुश हो गया। बोला कि मैं वास्तविक रूप में मेरे पास इतना संपत्ति नहीं है कि मैं भगवान के लिए 56 भोग बना सकूं, भगवान के लिए सुंदर मंदिर बना सकूं, भगवान का अच्छे अच्छे ज्वेलरी पहना करके अच्छे अच्छे ड्रेस पहना कर ड्रेसिंग कर सकूं। ये मैं नहीं कर सकता हूँ। लेकिन जब ये सुना तो वो फिर ये चालू कर दिया कि अगर ध्यान में, तो ध्यान में ही सही भगवान का बड़े ही सुंदर तरीके से श्रृंगार और बहुत अच्छा डिलीशियस डिशेस के द्वारा उनको भोग लगा करके सेवा करूंगा। ऐसा सोच करके वो ध्यान में बैठ गया। So sometimes he would take his bath in the river Godavari. After taking his bath, he would sit in a secluded place on the bank of the river, and by practicing the yoga exercises of pranayama, the usual breathing exercises, he would concentrate his mind. These breathing exercises are meant to mechanically fix the mind upon a particular subject. That is the result of the breathing exercises and also of the different sitting postures of yoga. Formerly, even quite ordinary person used to know how to fix the mind upon the remembrance of the Lord. And so the Brahmana was doing this. When he had fixed the form of the Lord in his mind, he began to imagine in his meditation
that he was dressing the Lord very nicely in costly clothing, with ornaments, helmets, and other paraphernalia. Then he offered his respectful obeisances by bowing down before the Lord. After finishing the dressing, he began to imagine that he was cleaning the temple very nicely. After cleansing the temple, he imagined that he had many water jugs made of gold and silver, and, and he took all those jugs to the river and filled them with the holy water. Not only did he collect water from the Godavari, but he collected from the Ganges, Yamuna, Narmada, and Kaveri. Generally, a Vaishnava, while worshipping the Lord, collects water from all these rivers by mantra chanting. Om Gange cha Yamune cha Godavari Saraswati Nर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन्। ये मंत्र के द्वारा आप जल को स्पर्श करके सारी नदियों का आवाहन कर सकते हैं। So this Brahmana, instead of chanting some mantra, imagined that he was physically securing water from all these rivers in golden and silver water pots. Then he collected all kinds of paraphernalia for worship, flowers, fruits, incense, and sandalwood bulb. He collected everything to place before the deity. All these waters, flowers, and scented articles were then very nicely offered to the deities to their satisfaction. Then he offered arti, and with the regulative principles, he finished all these activities in the correct worshiping method. कि ब्राह्मण जब सुना तो एक जो है गोदावरी नदी में स्नान करने के पश्चात सुबह सुबह एकांत में जाके बैठ जाता था नदी के तट में और बड़े ही ध्यान से मन को केंद्रित करके थोड़ा प्राणायाम के द्वारा मन को स्थिर करता था, फिक्स करता था। तो ये एक विधि है। अगर कभी किसी को जप करते वक्त बहुत ज्यादा मन विचलित हो रहा है, तो वैसे तो प्रभुपाद जी बताया बेस्ट है कि अगर मन विचलित हो रहा है जप करते हुए तो और अन्य कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। नाम में इतनी शक्ति है अपने आप में ही कि अगर कोई हरे कृष्ण नाम को जोर जोर से बोलकर सुनेगा तो उसका मन स्थिर हो जाएगा। लेकिन किसी कारणवश अगर कभी कोई ऐसा फील करता है कि हाँ, नाम जप तो कर रहे हैं, जोर जोर से भी बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी मन पूरी तरह से विचलित है, तो कुछ समय के लिए नाम जप करना बंद करके 5-10 मिनट के लिए प्राणायाम किया जा सकता है। जो डीप ब्रीथिंग, डीप ब्रीदिंग करके फिर सांस लेना, सांस छोड़ना, इससे मन थोड़ा स्थिर होता है। फिर वापस से जप करना चालू कर देना। सो ये जो अष्टांग योग का ये जो प्राणायाम सिस्टम है, इसका पर्पज यही था कि मन को अन्य जगह से निकाल के स्थिर कर सके। तो ब्राह्मण कुछ समय प्राणायाम करके मन को स्थिर किया और मन में ही भगवान के सुंदर अ, रूप को फिक्स करता है अपने मन में। और फिर भगवान के लिए सुंदर आसन है, भगवान को स्नान कराता है, भगवान को बहुत सुंदर सुंदर कॉस्टली गारमेंट्स, बहुत ही महंगे वस्त्र और आभूषण से भगवान का ड्रेसिंग करता है, श्रृंगार करता है, अच्छे से हेलमेट पहनाता है, हाथ में अंगूठी है, कंगन है, पायल है, अ, और कमर बंद बांधता है, ज्वेलरी पहनाता है, धोती है, उतरी है, सब कुछ अच्छे से हेलमेट पहना करके रेडी कर देता है। उसके बाद फिर सभी पवित्र नदियों में फिजिकली जा जा करके गोल्डन, सोने और सिल्वर चांदी के पात्र में शुद्ध पवित्र जल लेके आता है और भगवान को पूजा करने के लिए बहुत ही सुगंधित, पवित्र और फ्रेश फ्लावर्स, फ्रूट्स, अगरबत्ती, सैंडलवुड बल्ब, ये सब एकत्रित करता है और बड़े ही जैसे साथ में विधि बताई गई है, उस विधि के अनुसार उनका पूजा करता है। सो इस प्रकार से वो डेली एक करता था, क्योंकि उसके पास इतना सामर्थ्य नहीं था, पैसा नहीं था कि वो भगवान के विग्रह के लिए इतने सुंदर सुंदर कॉस्टली गारमेंट्स, फ्लावर्स और भोगा लगा ये सब खरीद सके। तो नदी में स्नान करने के बाद बैठ जाता था, मन में ये सब पूरा ध्यान करके चालू कर देते। So he would daily execute similar performances as his routine work, and he continued to do so for many years. ये दिन डेली करता था ऐसा और इस प्रकार से कई साल तक ऐसे करते गया डेली। तब एक दिन उसको परफेक्शन मिला। Then one day the Brahmana imagined in his meditation that he had prepared some sweet rice with milk and sugar and offered the preparation to the deity. However, he was not very satisfied with the offering because the sweet rice had been prepared recently and it was still very hot. So this preparation, sweet rice, should not be
taken hot. The cooler the sweet rice, the better its taste. So, because the sweet rice had been prepared by the Brahmana very recently, she wanted to touch it so that he could know whether it was fit for eating by the Lord. As soon as he touched the sweet rice pot with his finger, he immediately was burnt by the heat of the pot. In this way, his meditation broke. Now, when he looked at his finger, he saw that it was burnt, and he was wondering in astonishment how this could have happened, because he was simply meditating on touching the hot sweet rice. He never thought that his finger would actually become burnt. So ये एक हुआ ध्यान में। इस प्रकार से ध्यान में भगवान का बड़े ही अच्छे तरीके से सेवा करता था, डेली करता था, और ऐसे कई साल व्यतीत हो गए। फिर एक दिन के बाद उसने स्वीट राइस बनाया था भगवान के लिए, मन में ही और भगवान को ऑफर शाम करने के लिए, ऑफर करने के लिए रखा, लेकिन उसको संतुष्ट, थोड़ा सा डिससेटिस्फाइड था। अरे इतना जल्दी बनाया हूँ, ये गर्म होगा। तो जस्ट टेस्ट करने के लिए, चेक करने के लिए कि गर्म है कि नहीं है, ये ठंडा होना चाहिए। तो जैसे टच किया तो उसका उंगली जल गया, और जैसे ही उंगली जला तो उसका ध्यान टूट गया। आँख खोला तो देखा उसके फिंगर थोड़ा सा जला हुआ था। जला था मतलब इट वॉज हॉट, टिप ऑफ द फिंगर वॉज हॉट। सो बड़ा आश्चर्यचकित हुआ, अरे ये तो मैंने ध्यान में सब कर रहा था, लेकिन फिजिकली ऐसे कैसे हो सकता। सो दिस इज कॉल्ड परफेक्शन। परफेक्शन हासिल करनी वहाँ वैकुंठ में। सो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि अगर कोई प्रैक्टिकली कुछ बहुत नहीं कर सकता है तो कम से कम इच्छा तो करें। डिजायर करने में तो कंजूसी नहीं करना चाहिए ना। डिजायर करने में तो आ, बड़ा डिजायर रखना चाहिए। डिजायर में भी अगर हम केवल छोटा ही सोचेंगे, थर्ड क्लास ही रखेंगे, तो क्या फायदा। ये कुछ लोग होते हैं, इतने कंजूस होते हैं कि इच्छा में, इच्छा करने में भी कंजूसी कर देते। अगर उनको बोलो यस, वी विल गिव अप ऑल अदर अटैचमेंट और विल डेवलप कंप्लीट अटैचमेंट फॉर कृष्णा वेरी अभी इमीडिएटली, ऐसे करके इच्छा तो रखें इसमें भी। नहीं, धीरे धीरे, इच्छा भी धीरे धीरे करेंगे प्रभु जी। गिव मी सम टाइम, गिव मी सम कंसेशन, ये सब चीजें मांगते हैं। अरे कम से कम डिजायर तो करिए। डिजायर में तो कम से कम प्योर डिजायर रखना चाहिए। इच्छा में, अपने हृदय में इच्छा तो कम से कम इतना रखे ना कि हाँ, अगर किसी को प्रेम करना है, किसी को सेवा करना है, अच्छे तरीके से सेवा करना है, तो कृष्ण का ही करना है और किसी का नहीं। तो जब ये रखेंगे तो प्रैक्टिकली हो सकता है कुछ समय में होगा। बट अगर किसी का डिजायर ही नहीं है, अगर डिजायर में, हृदय में इच्छा ही रखेगा भगवान को केवल सूखा चपाती सब्जी खिलाने का, तो प्रैक्टिकली में क्या करेगा, कुछ नहीं खिलाएगा। कम से कम इच्छा ही करना है तो इच्छा में तो सोचना चाहिए ना कि हाँ भगवान के लिए अभी नेक्स्ट जो है ये फेस्टिवल आ रहा है, राधा अष्टमी आने वाला है अभी। तो भगवान राधा कृष्ण के लिए बहुत सारे व्यंजन बनाएंगे, 15 आइटम बनाएंगे, स्वीट राइस भी बनाएंगे, रसगुल्ला भी, रसमलाई भी, और जो है पनीर, पूरी, सब्जी, सब अच्छे से। कम से कम सोच तो लें, ऐसा डिसाइड तो करें ये सब करेंगे। तो इतना सोचेंगे, हाई स्टैंडर्ड रखेंगे, तो हो सकता है उसमें से 50% कर भी लें। और कोई विचार ही नहीं करेगा, और बस सोचेगा ठीक है राइस दाल खिला देंगे और क्या है। तो फिर हो सकता है वो भी नहीं खिला पाएगा। जस्ट एक एग्जाम्पल दिया, एंड इट अप्लाइज फॉर एवरीथिंग। जैसे जान जप करने का है, तो कोई सोचेगा ठीक है 16 माला कर लेंगे किसी तरीके से, धीरे धीरे उस स्टैंडर्ड पे आ जाएंगे, एक दिन 16 माला भी करेंगे। तो फिर कहाँ कर पाएगा। इच्छा रखेगा कोई, नहीं हम डेली जप करना चाहते हैं, 64 माला, 100 माला, 128 माला, या डेली भगवान का ऐसा सेवा करना चाहते हैं, डेली भगवान के लिए ऐसा करना चाहते हैं। प्रभुपाद जी बोलते हैं, इफ यू सिंपली डिजायर, इवन इफ यू आर अनेबल टू डू इट, इफ यू सिंपली डिजायर, दैट विल मेक योर लाइफ परफेक्ट। वो भी, हाँ, वो भी आपको सफल बना देगा। हाँ, दिस इज सो पावरफुल। तो कम से कम इच्छा तो रखना चाहिए। इच्छा करने में भी लोग कंजूसी कर देते हैं। एनीवे, ये ब्राह्मण, लेकिन इसलिए ब्राह्मण बोला गया है। जो ब्राह्मण होते हैं वो लिबरल होते हैं, भगवान के लिए सब कुछ देने के लिए तैयार रहते हैं, भगवान को हर प्रकार की उत्तम सेवा करने के लिए तैयार रहते हैं, इच्छा रखते हैं कम से कम। और ब्राह्मण के उल्टा होता है कृपण, कंजूस।
कृपण या शूद्र या कंजूस होते हैं। वो भगवान को और वैष्णवों को सेवा देने के लिए हमेशा कंजूसी करते हैं। हाँ, अपने लिए, अपना तथा परिवार वालों के लिए पूरा पूरा जीवन निछावर कर देंगे। लेकिन भगवान और भक्तों की सेवा के लिए बहुत बार सोचना पड़ जाता है। जैसे मान लीजिए कहीं जन्माष्टमी सेलिब्रेशन हो रहा है, तो उसमें आ, उसमें फेस्टिवल सेलिब्रेट करना है। तो उसमें लोगों को कि ये मंदिर है भाई, यहाँ पे इतना बड़ा लाखों रुपए का बजट है, लोग खर्चा करके भगवान कृष्ण के जन्माष्टमी सेलिब्रेट कर रहे हैं, चलो कुछ दान देना चाहिए। तो 500 रुपए भी जेब से निकालने में हालत खराब हो जाती है, नहीं निकलता है। लेकिन वहीं अगर, आई एम सॉरी, मैं बोल देता हूँ थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड, जो सत्य है तो सत्य है। ये मेरे शब्द नहीं है, ये शास्त्र में है। प्रभुपाद जी बोलते हैं लेक्चर में, और चैतन्य भागवत में दिया हुआ है। नवदीप में भी ऐसी स्थिति थी। नवदीप में महाप्रभु के प्रकट होने के पहले ऐसी स्थिति थी। बड़े बड़े ब्राह्मण लोग थे, पंडित लोग थे, बहुत शास्त्र पढ़ते थे, बहुत पंडित थे, लेकिन कृष्ण की भक्ति से शून्य थे। तो खूब पैसा था उनके पास, सब कुछ था। अपने बच्चों के जन्म दिवस पे, विवाह में करोड़ों लाखों लाखों खर्च करते थे। लेकिन भगवान कृष्ण के फेस्टिवल के लिए वो 1 रुपए भी खर्च नहीं करते थे। ऐसी स्थिति थी निमाय भगवान के प्रकट होने के पहले। लेकिन जो असली ब्राह्मण होते हैं, असली ब्राह्मण या वैष्णव, उनके हृदय में भाव रहता है। खुद के लिए कुछ भी ना कर पाए, लेकिन भगवान के लिए करें। इसलिए एक पैरामीटर है, एक टेस्ट है कि हम कितना अपने लिए करना चाहते हैं, अपना तथा परिवार वालों के लिए, और कितना हम भगवान के लिए करने के लिए तत्पर हैं। भगवान जो है, कोई व्यक्ति कितना देता है भगवान को, भगवान वो नहीं देखते। ये ध्यान रखिएगा। कितना वो प्रिजर्व करके रखा है अपने तथा अपने परिवार वालों के लिए, वो भगवान देखते हैं। हाँ, ये भगवान, जैसे किसी ने 1 लाख रुपए डोनेशन दिया, तो भगवान की आंखें 1 लाख रुपए पे नहीं रहती है, उसके अकाउंट में कितना बचा है वो उस पर आंखें रहती है। मुझे तो 1 लाख दे रहा है और अपने अकाउंट में 10 करोड़ रुपए बचा के रखा हुआ है। अब फैमिली प्लानिंग कर रहा है। हाँ, और कोई भक्त मान लीजिए, उसके अकाउंट में मात्र 10,000 रुपए है, उसमें से भी वो 9,500 रुपए जा करके दान कर देता है। भगवान बोलते हैं देखो बस 500 रुपए बचा है। लेकिन उसमें भी मान देखते हैं 500 रुपए क्यों बचा है। इस पजेसिव लवर, भगवान पजेसिव है। भगवान पूरा निचोड़ लेना चाहते हैं। क्योंकि आप सोचिए ना, भगवान अपने आप को देना चाहते हैं। इफ यू वांट कृष्ण, अगर आप चाहते हो कि कृष्ण अपने आप को दे दें, तो कृष्ण को देखना पड़ेगा ना, वो तो टेस्ट तो लेंगे ही ना, कि मुझे प्राप्त करना चाहता है, तो ये किस हद तक तैयार है सब कुछ अपना सेक्रीफाइस करने के लिए। इज ही रेडी टू सेक्रीफाइस? तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रिंसिपल है ना। ये जो भक्त है, या जो व्यक्ति, ये हमने देखा है खुद खुद के जीवन में, मीन्स हम प्रचार करते हैं, देखे हैं जिन भक्तों ने ये देने का भाव रखा है कृष्ण को, चाहे अपना समय देने का भाव, अपना एनर्जी देने का भाव, या अपना जो धन संपत्ति जिसके पास जो है, वो देने का भाव जब रहता है ना, तो वो भक्ति में बहुत तीव्रता से प्रगति करते हैं, माया से बहुत जल्दी छूट जाते हैं। ये एक फैक्ट। हाँ, ये सच बात है। हमारे, हम लोग कॉलेज में थे, तो हम प्रचार करते थे, हमने देखा है जो भी स्टूडेंट थे, तो स्टूडेंट थे, जॉब नहीं करते थे, तो उनके पास जो भी घर से थोड़ा बहुत पॉकेट मनी मिलता था, तो कुछ उसमें स्टूडेंट होते थे, तो वो लोग जो मिलता था सब जो है हमारे बेस में प्रचार का सेवा में जो भी खर्चा होता था उसमें दे देते थे। तो आज वो सारे के सारे जो ऐसे भक्त हुए हैं, जो देने का भाव रखे हैं, अपना टाइम एक्सटेंड कर देते थे, समय देने को तैयार हो जाते थे सेवा के लिए, और जो भी पैसा होता थोड़ा बहुत वो लगा देते थे, तो वो सब के सब आज ब्रह्मचारी हैं, बहुत अच्छे से फुल टाइम भगवान को अपने चरणों में बुला लिए, सेवा कर रहे हैं। हाँ, मुझे याद है आज भी, 2013, जनवरी 2013, हमारे बड़े भैया का विवाह था, तो मैं गया था। तो उसमें मुझे 2,500 रुपये लौटते वक्त विदाई मिली थी। तो सारा 2,500 रुपये जा करके मैं, हमारा जो बेस इंचार्ज थे, उनको दे दिया, प्रभु जी ये आप प्रोग्राम के सेवा के लिए लगा दीजिए। जैसे एग्जाम्पल बता रहे हो, तो ऐसे और भी हमारे भक्त थे, वो लोग लगा देते, कुछ होते थे बेस में रहते थे, लेकिन वो हिसाब करते रहते। प्रभु जी इस महीने में मैंने 4 दिन प्रसाद नहीं खाया, इसलिए मैं रेंट जो हूँ वो 1,000 रुपये कम दूंगा। ऐसे करके हिसाब करते थे कुछ लोग।
तो वो सब बेस में रहे भी 3 साल 4 साल, उसके बाद सब बाहर हो गए, आउट हो गए। उसमें से कुछ लोग भक्ति भी छोड़ दिए, कुछ लोग विवाह करके अलग अलग संसार में फंस गए। और कुछ उसमें अभी भी हैं, हमारे एनआईटी जयपुर से हम लोग थे, तो उसमें से हमारे बैच के और हमारे साथ बैच में कुछ भक्त ऐसे भी हैं जो पास आउट हुए भगवान की कृपा से। वो बेस में रहते थे, अच्छा मन नियंत्रित था, अच्छे से पढ़ाई किए। उसमें से कुछ लोग विदेश गए और अच्छा पैकेज कमा रहे हैं। एक भक्त का 45 लाख का पैकेज है। हाँ, और ऐसे एक आध और भक्त है जो गवर्नमेंट सर्विसेज में चले गए। लेकिन वो बड़े शुरू से कंजूस थे। हाँ, एक एक रुपए का हिसाब करते थे कि मैं इतना ही दूंगा, इतना करूंगा। तो भले ही आज खूब पैसा कमा रहे हैं, लेकिन भक्ति नहीं कर पा रहे, और अभी भी देने में हिचकिचाते हैं। उनको बोलो कि भाई कुछ तो दे दो, 11,000 रुपये डाल दो भगवान के लिए, जन्माष्टमी सेलिब्रेशन है, उसमें भी वो बहाने करते रहते हैं। क्या करूं प्रभु जी, अभी ना ये 2.5 करोड़ का फ्लैट लिया है, इसको इसका हमको भरना पड़ेगा, सब करना पड़ेगा, वो है फलाना नहीं। क्योंकि जो जितना पैसा कमाने लग जाता है, तो उसका फिर उस हिसाब से भौतिक इच्छाएं भी उस लेवल की आने लग जाती है। तो उतना जो काम 50 लाख के फ्लैट में हो सकता है, वो फिर अभी ज्यादा पैसा कमा रहा है तो अब 2.5 करोड़ के फ्लैट में रहेगा। फिर गाड़ी भी खरीदेगा तो 50-60 लाख की गाड़ी खरीदेगा। तो और कपड़े भी पहनेगा, तो ये सब तो बहुत सारी चीजें होती है। तो कहने का मतलब ये है कि भगवान भी उनसे सेवा स्वीकार करते हैं जिनके हृदय में भगवान को प्रेम पूर्वक वॉलेंटियरली देने का भाव रहता है। भगवान को जरूरत थोड़ी है ना, वो तो लक्ष्मीपति है। तो जो भाव, ये भाव से देते हैं भगवान को अपना समय, एनर्जी या अपने रिसोर्सेस, धन संपत्ति, कि भगवान मैं बहुत ही पतित हूँ, और विनम्रता पूर्वक कि भगवान आपके चरण कमलों की सेवा के लिए, ताकि हमारा उद्धार हो जाए, मेरे शुद्धिकरण के लिए मैं अपना समय आपकी सेवा के लिए दे रहा हूँ, अपना एनर्जी आपकी सेवा के लिए लगा रहा हूँ, या ये धन संपत्ति या जो भी मेरे पास है, ये मैं आपकी सेवा के लिए लगा रहा हूँ, मेरे उद्धार के लिए, मेरे शुद्धिकरण के लिए। आपको और आपके भक्तों को जरूरत नहीं है इसकी। ठीक है, वो भगवान को, भगवान के भक्तों को जरूरत नहीं। भगवान तो वैसे ही परम भगवान है, लक्ष्मीपति हैं। और भगवान के भक्तों को भी भगवान के चरण कमलों में आश्रय लिए हैं, तो भगवान उनका मेंटेनेंस करते हैं, भगवान पर्सनली मेंटेनेंस करते हैं। तो ये भी गलत फहमी नहीं रखना चाहिए। यहाँ जैसे एक भक्त, एक यूथ डिवोटी, युवा भक्त है मुंबई के, तो वो बोल रहे थे कि अगर भगवान ही करते हैं तो आप लोग डोनेशन क्यों मांगते हैं? हाँ, बाहर वाले अगर डोनेशन नहीं देंगे तो आप लोग क्या खाएंगे पिएंगे, कैसे आपका जीवन चलेगा? आप भी तो निर्भर हैं सब पे। तो ये गलत फहमी है। डिवोटीज आर डिपेंडेंट, सही बात है, भक्त लोग निर्भर है पूरी तरीके से, लेकिन किसके ऊपर? भगवान के ऊपर निर्भर। भगवान खिलाएंगे तो खाएंगे, नहीं खिलाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, डजंट मैटर। और कभी ये नहीं सोचना चाहिए कहीं से भी, अन्य जगह से भी आता है तो किसका है? वो भगवान का ही है। भगवान, भगवान के भक्त आपको अपॉर्चुनिटी देते हैं, सुअवसर देते हैं कि आप और हम, हाँ, हम जब अपना रिसोर्सेस, अपना एनर्जी है या कुछ बुद्धि है, या हमारे पास कुछ स्किल है या कुछ पैसा है या समय है, हम जब भगवान, भगवान के भक्तों के लिए देते हैं, इससे हमारा फायदा होता है। हाँ, हम टेम्परेरी चीज को दे करके परमानेंट चीज पाते हैं, ये हमेशा ध्यान रखें। हाँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल समय है। हाँ, जैसे हम अभी युवा है, तो युवा जीवन में दो ऑप्शन थे। या तो जाकर के इंद्र तृप्ति मजा कर सकते थे। तो अगर मान लीजिए ये अभी फुल टाइम इस्कॉन में ज्वाइन ना करके हम डिसाइड करते कि चलो हम भी मजा करेंगे, पार्टी करेंगे, क्लब क्लब में जाएंगे और सेंस ग्रेटिफिकेशन करेंगे, खूब पैसे कमाएंगे, तो उसमें भी तो ये जो जीवन है, 18-20 साल की उम्र से लेकर के 40-45-50 साल की उम्र का ये युवा अवस्था है, उसमें ये भी तो जाता ही ना, 20-25 साल तो व्यतीत हो ही जाते हैं। तो इसलिए ये समय टेम्परेरी है। लेकिन अगर जो बुद्धिमान होते हैं, भगवान की कृपा हो जाती है अगर, तो अपने इस जीवन को, जो सबसे क्रूसियल लाइफ है, युवावस्था, उसको भगवान के चरण कमलों में दे देते हैं आपकी सेवा के लिए। तो ये जो टेम्परेरी रिसोर्स है, टाइम, 20-25 साल का जो युवावस्था जीवन होता है, ये भगवान की सेवा के लिए दे दिया, तो इसका परिणाम क्या होता है? उसको परमानेंट रिटर्न मिल जाता है। हाँ, ये ध्यान रखिए। जैसे जैसे किसी के पास धन है, तो धन कितना भी धन हो, किसी के पास करोड़ों रुपए, अरबों रुपए भी, तो क्या है? टेम्परेरी है। कितना भी रखेगा, जैसे ही मृत्यु होगा खत्म,
किसी के पास बहुत सारा धन, पूरे विश्व का भी धन होगा, तो कितने साल रहने वाला है उसके पास? 20 25 30 40 50 साल के लिए बस रहेगा ना। फिर जैसे ही मृत्यु होगा, फिनिश होगी। लेकिन अगर उसके पास बुद्धि काम कर गई, भगवान की कृपा से ये बुद्धि मिलेगी, इतना आसान नहीं है, माया बहुत पावरफुल है। अगर उसका बुद्धि काम कर गया, वो सोच, अरे मेरे पास 50 करोड़ रुपए हैं, और मेरा जीवन कितना बचा है, बस 10 15 20 साल बचा है। तो या तो 10 15 20 साल बस अकाउंट में पड़ा रहे, और या मैं इसको कृष्ण की सेवा में दे दूं तो उसका परमानेंट एसेट मिल जाएगा। हाँ। जैसे मुंबई में यहाँ पे एक भक्त हुए, पीएल सेठी जी हुए। तो वो बहुत बड़े कंस्ट्रक्शन, मतलब उनका बिजनेस था, कंस्ट्रक्शन कराते थे। और बहुत पैसे वाले भी थे, और उनका बहुत पहुंच भी था। तो जब मंदिर बनना था यहाँ पे, तो मंदिर बनने के पहले तो प्रभुपाद जी विदेश से कई भक्तों को लेके आए थे, तो उनको रहने के लिए जगह नहीं था। वो भक्तों को देखे कि ये लोग एक ऐसा शेड, हाँ, शेड के नीचे रहते थे। और जब बारिश होता था तो पूरा उनके शेड के अंदर पानी भर जाता था, बड़े बड़े चूहे घुसते थे, तो काटते थे तो सुबह उठते थे तो खून से लथपथ रहते थे, भागना पड़ता था डॉक्टर के पास, ऐसी हालत थी। और कई भक्तों को विदेश से आए थे, उनको टाइफाइड हो रहा है, किसी को हाँ, और पेट का समस्या हो रहा है, बहुत कष्ट ऐसा हो रहा है। तो जैसे ही इनको पीएल सेठी जी को पता चला कि ये सब कंडीशन हो रही है, तो उन्होंने प्रपोजल रखा प्रभुपाद जी के सामने, बोले कि मैं इन सभी भक्तों के लिए जो है वहाँ पे 4 बिल्डिंग थी, हमारा जुहू जुहू जो लैंड है, तो पहले 4 वहाँ पे बिल्डिंग थी, 3 या 4 4 माले की। तो वो बोले, प्रपोजल दिए कि सारी बिल्डिंग के ऊपर में एक एक जो है फ्लोर और तैयार कर दूंगा, तो आपके जितने भी 40 50 भक्त हैं सब रह सकते हैं। तो प्रभुपाद जी बोले, ओके, आपकी इच्छा है, आप कर दीजिए, सेवा अच्छा रहेगा। तो कर दिया, और कुछ ही महीने में वो सब तैयार कर दिए, तो भक्तों को बहुत अच्छा निवास स्थान मिला। जब प्रभुपाद जी गए, देखे तो इतना सुंदर व्यवस्था किया है भक्तों के लिए अच्छे से रहने के लिए। तो प्रभुपाद जी बोले, यू हैव मेड हाउस एज होम फॉर डिवोटीज हियर, एंड कृष्णा इज मेकिंग योर होम इन गोलोक वृंदावन धाम। तो पीएल सेठी जी ऐसे कुछ जैसे हम लोग भक्ति करते हैं, 16 माला, कोई 25 माला, 64 माला, 100 माला करता है, वैसे कुछ माला नहीं की है। हाँ, वो कर लगभग 45 50 साल की उम्र के थे जब प्रभुपाद जी से मिले, और भक्तों के लिए सेवा किया। फिर जब मंदिर टूटने की अवस्था आई थी, तो जो डाकू लोग आए थे, तो उस गेट के सामने खुद खड़े हो गए थे राइफल लेकर के, बोले कि जिसकी हिम्मत है आ जाए सामने, इसके ऊपर से, इसकी लाश के ऊपर से जाना पड़ेगा। और फायरिंग करना चालू किए, हवा में फायरिंग किए, सारे डाकू लोग भाग गए। और उसके बाद फिर रातों रात उन्होंने टेम्परेरी कंस्ट्रक्शन करके स्थापित कर दिया था, तो उससे बहुत आज मंदिर उनके कृपा से खड़ा है, उन्होंने बहुत दे दिया। और जिस दिन मंदिर जैसे ही परमिशन, डॉक्टर क्या नाम थे उसका, मिस्टर नायर से लैंड मिला फाइनली, तो पीएल सेठी जी की वाइफ जो है पहला डोनेशन देती है, उनके हाथ में सोने का कंगन था, और सोने का कान का पहनी थी, नाक का पहनी थी, सबको जो भी सोने का ज्वेलरी था, एक्सेप्ट मंगलसूत्र, एक मंगलसूत्र छोड़ करके ऑन द स्पॉट सब अपने सोने का आभूषण निकाल के प्रभुपाद जी को पहला दान देती। प्रभुपाद जी बड़े खुश हुए, बोले कि फर्स्ट डोनेशन अगर सोने के रूप में मिलता है तो बहुत ऑस्पिशियस होता है। तो प्रभुपाद जी फिर उनको बोले कि आप यहाँ पे भक्तों के लिए घर बनाया, भगवान आपका घर वहां पे बना रहे। तो पीएल सेठी जी बोलते हैं प्रभुपाद जी से कि प्रभुपाद स्वामी जी, मैं तो इतना बड़ा भक्त नहीं हूँ, मेरे को कुछ ज्ञान भी नहीं है, मैं तो पढ़ता भी नहीं हूँ, शास्त्र भी एक श्लोक भी नहीं आता है, आपके अन्य भक्तों के जैसे मैं नाम जप भी इतना नहीं कर पाता हूँ। सो मैं कैसे भगवान के धाम जा पाऊंगा? तो प्रभुपाद जी बोले कि आप उसके बारे में चिंता मत करो, मैं आपको लेने के लिए आऊंगा। ये आप सुन सकते हैं, उनके खुद के पुत्र ब्रजमोहन शेट्टी जी ये खुद बताते हैं। फिर 2009 या 2012 में आई थिंक, प्रभुपाद जी 1977 में चले गए। हाँ, तो जब पीएल सेट्टी जी का अंतिम समय आ रहा था, 2009 2012 के आसपास, तो वो आखिर उस रात को, जिस रात वो शरीर छोड़ रहे थे, तो अपने बेटे को बोलते हैं कि बेटा, आसन लगाओ, प्रभुपाद आए हैं, प्रभुपाद आए हैं, मेरा बैग पैक कर दो, मुझे लेने के लिए आए। हाँ, आपको क्या लगता है, मरते वक्त कोई व्यक्ति झूठ बोलेगा? नहीं। अंतिम समय में जिस
रात को शरीर छोड़े उसके 1-2 घंटे पहले वो ये बोलते हैं कि द्रौपद आए हैं, के लिए आसन लगाओ, वो मुझे लेने के लिए आए हैं, मेरा बैग पैक कर दो। और ये बोल करके वो फिर चले गए। तो ये प्रमाण है। यानी कहने का मतलब ये है कि इस संसार में अपना जो टेम्परेरी उनके पास जो क्षणिक कुछ समय के लिए जो धन संपत्ति था, कुछ पहुंच थी, कुछ समय था, जो भी उनके पास था, वो भगवान और भगवान के भक्तों की सेवा में लगा दिए। और उसका रिजल्ट क्या हुआ, उनको परमानेंट मिल गया, परमानेंट रेसिडेंस इन वैकुंठ। तो जो बुद्धिमान होंगे वो इस प्रकार से विचार करेंगे ना, कि ऐसी जगह इन्वेस्ट करेंगे, जो बिजनेसमैन होते हैं ऐसे इन्वेस्ट करेंगे जहां से जो रिटर्न है वो परमानेंट आए और ज्यादा मात्रा में। तो भक्ति में भगवान कृष्ण और भक्तों की सेवा के लिए जो इन्वेस्ट कर देता है, लगा देता है अपना एनर्जी, अपना जीवन, अपना हरे समय, कृष्णा। अपना क्या धन आपकी संपत्ति, आवाज नहीं आ रही है? सब कुछ, तो वो परमानेंट एसेट प्राप्त करते हैं। ठीक है, आवाज नहीं आ रहा क्या? आ रहा है मुझे। ओके, ठीक है। ठीक है, तो समय हो गया, यहीं पे विराम करते हैं। थैंक यू वेरी मच।